in this course, rather apart from these two courses, English department is also contributing for the communication skills. तो मेरा भी करता है कि मैं भी आपकी तरह एक फर्राटेदार इंग्लिश बोलूं। सिंघानिया विश्वविद्यालय आखिर आपके लिए बेहतरीन क्यों है? आज के दौर में जहां हर एक नवयुवक की सोच है कि मैं अंग्रेजी भाषा में सभी से बात करूं और देश विदेश में अपनी पहचान भी बनाऊं, और हम यहां पर डिपार्टमेंट से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं कि प्रत्येक डिपार्टमेंट और प्रत्येक विषय के प्रवक्ता हैं वो आपके लिए बेहतरीन क्या जो है लेकर के आए हैं। उनके सेल्फ इंट्रोडक्शन के साथ हम जानना चाहेंगे कि सिंघानिया विश्वविद्यालय की उपलब्धियां और प्रत्येक क्षेत्र में किस तरीके से सिंघानिया विश्वविद्यालय माता पिता और अभिभावकों के सपने पर खरा उतरने का काम कर रहा है। श्रीमान जी, क्या कहना चाहेंगे अपने डिपार्टमेंट के बारे में, और खास करके आप अपने व्यक्तिगत परिचय के साथ लोगों से जुड़े हुए हैं? Hello everyone, my name is Dr. Manish Kumar Thakur. I am working as Associate Professor in the Department of English, Singhania University. So it has been a year with Singhania University for me, and it was a great journey so far. And Singhania University is located in the rural regions and is one of the best university in this region as I have observed so far. So we are having here different courses, like for example, if I will talk about my English department, so we are having BA General, in which you are having normal English subjects, major and minor as per the NEP 2020. And we are also having honors course in BA, BA in English honors you can also opt for. And in masters we'll talk about, then we have MA in English literature, which anyone who is graduate can opt for this course. So in this course, rather apart from these two courses, English department is also contributing for the communication skills. As you know, in the present situation, present world, English language is very, very important. Whatever the course you are doing, language is the main communicator. If you are not well equipped with the language, then you will not be able to communicate, you will not be able to pass your language, pass your knowledge to other people. So that is the reason why the language is very, very important, and I should ask everyone to focus on this language, because this is a rural area. So in order, though people who are living over here nearby the places, they are village people, obviously they are not very much acclimatized with the language. So in order to make them kind of familiar with the language, I always try to have communicative interactive classes during my lecture. I used to communicate, interact with the students. I used to tell them different techniques, what they can opt for in order to speak in English. Obviously, it's not something which we can achieve in a day or a week or a month, you can say. It's a constant exercise. For 5 to 6 months, you need to do different exercises, different activities in order to learn the language, the language. So I welcome you, welcome everyone whosoever is interested in understanding the language and obviously in improving their skills in communication in English language. So they must come once over here, and so that I can guide them for this thing. Thank you so much. मन तो मेरा भी करता है कि मैं भी आपकी तरह एक फर्राटेदार इंग्लिश बोलूं, लेकिन थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र में होने के कारण यहाँ की आसपास के लोगों से ये भाषा उतनी ही दूर है। लेकिन मैं आपसे एक हिंदी भाषा में भी वार्तालाप चाहूंगा कि यहाँ के लोग चाहते हैं कि वो फर्राटेदार इंग्लिश बोले। उसके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा और कितना योगदान सिंघानिया विश्वविद्यालय का हो सकता है? जी बिल्कुल, इसमें सबसे जरूरी है जो भी बच्चा सीखना चाहता है, उसका सबसे पहले उसका फोकस जरूरी है कि वो उसके बारे में कितना सीरियस है। तो अगर वो सीरियसली उस लैंग्वेज को सीखना चाहता है तो हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स रहती है। जैसे बेसिक टेक्निक, किसी भी लैंग्वेज को जब हम सीखते हैं तो उसकी 4 एक बेसिक वो रहते हैं, जो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो जितना ज्यादा आप रीड करेंगे उतना ज्यादा बेटर आपकी राइटिंग होगी। ऑब्वियसली जितना ज्यादा आप सुनेंगे दूसरों को तो आप बोलना सीखेंगे, आपको समझ में आएगा कि कैसे बोलना चाहिए। तो जैसा मैंने पहले भी कहा, तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि एक दिन में एकदम से आ जाएगा, लेकिन कुछ टेक्निक्स है, कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। जैसे वोकैबुलरी है, तो आपको वर्ड्स, पहले तो सबसे पहले वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। तो वोकैबुलरी आप इंप्रूव कीजिए डेली,
कुछ वर्ड ऐड ऑन करते रहिए, उनको प्रैक्टिस में लाइए। ऐसा नहीं कि उसको ना वर्ड को आपने नोट कर लिया और फिर उसको रख दिया किसी डिक्शनरी किसी नोटबुक में बंद करके। सो इस तरह से नहीं आएगा, वो आपको यूज करना पड़ेगा, वो वर्ड उसको आपको अपने डेली यूज में लाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आपके पास वर्ड्स बढ़ेंगे तो आपके पास जब आप बोलेंगे तो ऑब्वियसली आपको क्या चाहिए, आपको शब्द चाहिए। वो शब्द जब आपके बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, तो आपके लिए बोलने में आसानी रहेगी। आपके कोई भी आइडिया को जब आप कहने का मतलब है आपका ये है कि भाषा बहुत आसान है, जी, 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 सिर्फ जी। आपकी लगन होनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही बात है। इसमें आपका आपकी लगन है और आप क्या कितने किस लेवल तक क्या सीखना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। आप कितना उस पे इनपुट देंगे। जैसे सीधा सा एक एग्जांपल लूं, किसी को कार चलाना सीखना है तो उसको किताबें पढ़ के तो कार चलाना नहीं आएगा, उसको वो चलानी पड़ेगी। उसी तरह ये लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज सीखने के लिए आपको प्रैक्टिकलिटी में आना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। सबसे पहले डरना नहीं पड़ेगा, उसको आपको यूज करना पड़ेगा। लैंग्वेज से हम क्या करते हैं, हम डर जाते हैं, हमें लगता है पता नहीं हम गलत बोल देंगे, दूसरे हम पे हंस देंगे, हम पता नहीं क्या कुछ बोल देंगे, दूसरा हमारा मजाक उड़ाएगा। तो हमें इन चीजों से ऊपर निकलना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिकलिटी में इसको लैंग्वेज को लाना पड़ेगा, तभी ये सीखना कोई बड़ी बात नहीं है किसी के लिए भी। धन्यवाद सर। जी।